मैं हंगर गेम्स सीरीज का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। अगर आप अभी तक ओल्ड फील नहीं कर रहे हैं तो आप फील करिए कि 10 साल पहले बाय अ स्टेट कॉल्ड पैनम। हे गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज Faraz from a couple unfiltered. So I've been thinking about making this video for a long time बिकॉज मैं हंगर गेम्स सीरीज का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैंने मूवीज देखने से पहले सारी नॉवेल्स पढ़ ली थी, द थ्री ओजी नॉवेल्स, और उसके बाद मैंने मूवीज देखी जो एट दैट टाइम एचबीओ पे आती थी, एचबीओ चैनल जो था हमारा। सो so while as you know, Hunger Games has completed 10 years of its last movie releasing. मतलब लास्ट मूवी जो थी मॉकिंग जे पार्ट 2, वो 10 साल पहले आई थी। And मतलब अगर आप अभी तक ओल्ड फील नहीं कर रहे हैं तो आप फील करिए कि 10 साल पहले हंगर गेम्स का लास्ट बार रिलीज हुआ था, एंड इट्स बीन 10 years. So I was thinking about making a video dedicated to my passion for this series, Hunger Games. So let's start. One, two, three, let's go. So let's start with Hunger Game as a concept. What is Hunger Games? So Hunger Games, if you have read the books, or if you have seen the novels, it's about games. It's about a game that is organized by a state called Panem, which is a capital state for 13 other districts. Out of those 13 districts, one have been leveled by nuclear bombs during the uprising in which all the 13 other districts revolted against Panem a few hundred years. Almost this is a 74th Hunger Games, so 75 years ago almost. So that's the story. So after leveling that 13 district 13, बाकी की district ने हथियार डाल दिए अपने, and they said yes, is fine. Ceasefire was organized, and as a punishment for all the district that revolted against the Panam, the capital district. Uh, excuse me, the capital started to organize a game called the Hunger Games. Each year, one girl and one boy from each district of all those 12 districts will be selected through a process called reaping, and उसके बाद randomly एक लड़का from the age of 12 to 16, as far as I remember, yeah, 12 to 16 I think. If I'm wrong, please correct me in the comments. So 12 to 16 will be uh, will be randomly selected through a lottery process, and उन दो बच्चों को कैपिटल ले जाया जाएगा, जहाँ उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी टू गेट स्लॉटेड ऑन स्क्रीन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पैनम। एंड ऑल्सो ये गेम्स पूरी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में रिले होते हैं, और वॉच मैंडेटरी होती है ऑलमोस्ट. सो इट्स अ what would you say, it's a society in which there is no democracy, there is no capitalism, there is only dictatorship, in which you have to watch your children from your district getting killed, slaughtered by the children of other district. Also, this is the way by which capital controls the district, because each district has a role to play. हर डिस्ट्रिक्ट का एक रोल होता है. जैसे कि डिस्ट्रिक्ट नंबर 12 वो कोल प्रोड्यूस करती है, तो वो एनर्जी में काम आता है, वो काफ़ी चीज़ों में काम आता है. सेम वे डिस्ट्रिक्ट कोई और डिस्ट्रिक्ट फार्मिंग के लिए है, डिस्ट्रिक्ट 6 जैसे फार्मिंग कर रही है, और वो सारा फार्म्स रिलेटेड सब हैंडल करती है. और एक डिस्ट्रिक्ट हथियार सप्लाई करती है, और एक डिस्ट्रिक्ट पावर सप्लाई करती है, और एक डिस्ट्रिक्ट कुछ करती है, एक डिस्ट्रिक्ट कुछ करती है. और हर डिस्ट्रिक्ट के बीच जो ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है. सारी डिस्ट्रिक्ट बोर्डेड हैं, और अलाउ नहीं है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना. Only there is one train which capital uses to transport kids from each district during the Hunger Games. So just imagine living in a district where you have been together a few hundred years ago, but now you are seeing a guy from district 9 killing a kid from district 9 killing a kid from your district. So it's kind of a psychological game to bid all the district against each other.
ताकि आपस में भी उनके अंदर नफरत बनी रहे और कैपिटल के खिलाफ ना रिवॉल्ट करें। ऑल्सो द लाइफ इन कैपिटल पैनम इज लग्जूरियस। वहां ना किसी को काम करना है, सब चिल कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। सो देन इज द लाइफ देयर इज extremely extremely luxurious. So for that amount of aram, that amount of luxurious life, you need an extreme form of game to entertain, because simple games से तो entertain होने नहीं वाले। उन्हें चाहिए लिटरली, मतलब उनके कैपिटल के लोग जो है नॉर्मल लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके दिमाग को ऐसा व्हाइट वॉश किया गया है, ऐसा व्हाइट वॉश किया गया है कि दे कांट डिसाइफर कि दिस इज नॉट जस्ट अ गेम। फॉर देम इट्स जस्ट अ गेम, बट फॉर द पीपल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इट्स लाइक सीइंग योर चाइल्ड गेटिंग किल्ड in front of millions of people watching. इट्स हॉरिफिक, इट्स टॉर्चरस, बट यही तो है कि आप खुद देखिए ना, आपके आसपास चीज़ें जो हो रही हैं। कई मुल्कों में आप देखेंगे कि मेजोरिटी को माइनॉरिटी के खिलाफ भड़का दिया जाएगा, और ऐसा नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि अगर माइनॉरिटी के लोगों को मार दिया जाए तो मेजोरिटी सेलिब्रेट करेगी। अगर आप हंगर गेम से कॉन्टेस्ट में आप बोलेंगे क्या गलत कर रहे हैं, बट असली में ये हो रहा है दुनिया में। सो इट्स जस्ट अ सुजैन कॉलन जो ऑथर हैं हंगर गेम्स की, वो कमेंट्री कर रही हैं कि दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, इस लेवल पे नहीं हो रही हैं लेकिन हो रही हैं। आप अपने आसपास देखिए, आजू बाजू देखिए, और अपने आप को जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी जगह रख के देखिए, शायद आपको बेटर एम्पैथी फील हो। बट या दिस इज द बेसिक जिस्ट ऑफ द हंगर गेम्स, कि एक गेम्स होता है जो कैप्टन अरेंज करता है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का और लड़की सिलेक्ट होते हैं। सो दैट्स द जिस्ट एंड हाउ कैपिटल, दिस इज हाउ कैपिटल कंट्रोल्स और डर बनाए रखता है अपना। सो आवर स्टोरी स्टार्ट विद हंगर गेम्स पार्ट वन, वेयर कैटनिस एवर्डीन जो डिस्ट्रिक्ट 12 की एक डिस्ट्रिक्ट 12 में रहती हैं, जो ऑलमोस्ट 16 ईयर्स की एज के पास पहुंच रही हैं, और अ, वो अपनी फैमिली की एकमात्र अर्निंग मेंबर हैं, शी इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हर फैमिली। और वो अपना सामान बेचकर, उनके पास एक बकरी है जिसका वो दूध बेच देते हैं। उनकी मॉम काम चीज़ें और चीज़ें बनाती हैं जो वो बेचते हैं। ऑल्सो वो उन जो डिस्ट्रिक्ट के आसपास इलेक्ट्रिक फेंस है, जो जिसमें मोस्टली इलेक्ट्रिक नहीं होती है, वो उससे पार करके जंगल में जाती है इलीगली। दैट्स इलीगल इन कैपिटल। सो अगर वो पकड़ ली जाएगी तो लिटरली फ्लॉगिंग होगी उसकी, फ्लॉगिंग यानी कि कोड़े से मारा जाएगा। बट ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट 12 के जो पीस मेकर है, जो पुलिस है, उसे पीस मेकर कहा जाता है इस वर्ल्ड में। जो पुलिस है वो थोड़ी लीनियंट है, तो वो कई बार जैसे रैबिट मार के लाई या फिर वो कोई डक मार के लाई तो वो उन्हें बेच देती है, और वो ले भी लेते हैं। सो दे नो हाउ। सो कैटनिस इज लाइक द मैन ऑफ द हाउस। I don't like to use that term, but she is. She looks out for her mother against her little sister, Primrose Everdeen, and she आफ्टर हर फादर्स डेथ, उनकी मॉम एक सदमे में चली गई थी, उसके बाद से शी ओन्ड अप एंड she started doing what her father used to do. Her father was kind of a rebel, but he was not openly rebel. मतलब वो भी जंगल में जाके उसी उन्हीं ने सिखाया था कैटनिस को। सो कैटनिस ऐसे ही अपने दोस्त के साथ, जो गेल है उसका दोस्त, उसके साथ शिकार करने गई, और उस दिन रीपिंग का दिन था। रीपिंग का दिन वो दिन होता है जिस दिन लड़का और लड़की का सिलेक्शन होता है। और और ये लोग को आदत है अब उस चीज़ की कि हर साल बचपन से देख रहे हैं। सो कैप्टनेस तो गेल एक ब्रेड लेकर आता है, लिटरली ब्रेड होना लग्जरी माना जाता है डिस्ट्रिक्ट 12 में। सो वो बोलता है कि मैंने कुछ बेरीज या फिर कोई कोई चीज़ के बदले ये ब्रेड बेकर से ले ली। तो बेकर बहुत खुश हो गया, उसने मुझे ब्रेड दे दी। तो दे आर रियली हैप्पी, दे आर काइंड ऑफ सेलिब्रेटिंग। और जो स्लोगन है हंगर गेम्स का, मे ऑड्स बी एवर इन योर फेवर, इट्स लिटरली a hypocrite slogan, but let's continue. So the reaping होती है, कैटनेस की बहन बहुत डरी हुई सहमी हुई रहती है, तो सब अपनी अपनी जगहों पर लाइनों में खड़े हो जाते हैं और फिर नाम ड्रॉ होते हैं। एंड देन as you know must be knowing, प्रिम का नाम आता है जो कैटनेस की छोटी बहन है। बट इन अ in a whirlwind of thoughts, what does it what took over Katniss? She just shouted her name out and ran towards her sister and said, "She, I, I'm the one taking her place in this tournament."
So she, to protect her sister, her little sister, she stood up and said कि मैं मेरी बहन की जगह जाऊंगी, प्लीज डोंट टेक माई सिस्टर. और डिस्ट्रिक्ट 12 की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है. बट अगर आप डिस्ट्रिक्ट 12 की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी के बदले में उसके भाई या उसकी बहन ने बोला कि नहीं, मेरा भाई नहीं जाएगा, मेरी बहन नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी. सो शी वॉलंटियर्ड. शी लिटरली shouted that word, I volunteer, as tribute. Tribute कहा जाता है उन बच्चों को जो सिलेक्ट होते हैं. Literally tribute to capital dark. So she got selected and another guy Peter got selected. So they go on a journey. Capital में उन्हें ट्रीट किया जाता है. Also they are trained by the ex Hunger Game winners. हर डिस्ट्रिक्ट जो पहले के लोग जीत चुके हैं हंगर गेम्स को, वो लोग डिस्ट्रिक्ट में जो नए सिलेक्ट किया है तो उन्हें ट्रेन करते हैं. सो हेमिश एबरनेथी के नाम के बंदे जो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स पहले, 40 to 50 ईयर्स पहले हंगर गेम्स जीते थे, वो वो ट्रेन करते हैं कैटनिस को. और हेमिश का कैरेक्टर जो दिखाया है वो बहुत ही परेशान है, डिप्रेस्ड है और बहुत नशेड़ी है. और साथ में एक कैपिटल की बंदी होती है जो उनको ले जाती है, पार्टीज में ले जाती है, उनको लोगों से इंट्रोड्यूस कराती है. सो दैट्स हाउ द थिंग वर्क्स. कैटनिस कैटनिस इज लिटरली Katniss is like a person who doesn't give a flying fuck about what's happening around her. She don't like to talk to people. She is literally she literally charisma. एक होता है charisma magnet. She repels charisma. It's like if you literally want to talk to her, she will say fuck you and she'll move on. But God knows what, something in her that captures capital's attention. The way she behaves. Capital people are so full of them कि जब वो there's a sequence in Hunger Games Part 1 where the tribute जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट से ट्रिब्यूट आए हैं, उन्हें बोला जाता है कि एक परफॉर्मेंस देना है अरीना में जाने से पहले. एक परफॉर्मेंस दिया जाएगा. तो इंडिविजुअली हर ट्रिब्यूट जाता है और कुछ अपना जिसमें वो अच्छा है वो शो करता है, जो जो गेम मेकर्स होते हैं, जो गेम्स को ऑर्गेनाइज मतलब ओवरसी करते हैं, उनके सामने. और जब कैटनिस जाती है तो कैटनिस इज एन एक्सपर्ट इन बो एंड एरो. सो वो बो एंड एरो तो मिलता है उसे. बट ऑब्वियसली उसका जो बो एंड एरो है वो नेचुरली मेड है, ये प्लास्टिक और कार्बन फाइबर से बना हुआ बो एंड एरो है. उसे एक दो बार शॉट नहीं लगते हैं. तो जो लोग ऊपर देख रहे होते हैं गेम में का, दे डोंट केयर लिटरली. Those so they started to eat a huge pig arrives, roasted pig and food, chicken, god knows what. And they started to indulge in the delicacies. Katniss looked at them like that and he shot the arrow towards the pig. The pig has an apple in his mouth, and the arrow literally shot through that apple. So instead of getting furious or angry, they like it. And she got awarded 12 points. That is the highest ever awarded in Hunger Games. So when then they go to arena also. पीटा जो है जो साथ में आया कैटनिस के, वो ही ट्राइज टू प्ले अ कार्ड ऑफ फॉरबिडन लवर्स. लाइक ही सेज कि मुझे कैटनिस पसंद है, बट वो मेरे साथ आई है, बट इसलिए मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ. So Hamish बोलता है कि I have to sell this idea so that you get sponsors. There are sponsors in these Hunger Games who provide things. For example, you are injured in the Hunger Games and you need attention, so they will provide you a liquid that you can drink or you can apply to heal your wounds faster. So that's how they enter the once they enter the arena. It's a bloodbath. Many people die. Almost half of them die on the day one. There's a cornucopia which has all kinds of weapons, foods, everything. Katniss just get the bag which is located almost most of the almost at the border, no, farthest from cornucopia. She just ran and bolted towards the forest. बाकी सब उधर भागते हैं और there's a bloodbath over it. So throughout the games, Katniss hide and tried to survive. Then she found out that Peta is working with the elite tributes. Elite tributes are the tributes which are from higher district, which are favored by capital. ये भी कैपिटल का एक तरीका है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को फेवर करते हैं वो लोग, जिससे बाकी के डिस्ट्रिक्ट उन डिस्ट्रिक्ट को गलत देखें. तो उन डिस्ट्रिक्ट में से जो ट्रिब्यूट्स आते हैं उनके लिए गर्व की बात होती है
कि हम जा रहे हैं, बड़ी बात है, हम सिलेक्शन होगा हमारा। और काइंड ऑफ मेंटालिटी ऐसी बनाई जाती है, और मोस्टली उन्हीं डिस्ट्रिक्ट से जीतते हैं, क्योंकि और वो ट्रिब्यूट ट्रेंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ अलाउ नहीं है, बट कैपिटल फेवर करता है उनको, उनको चीज़ें दी गई हैं, उनके पास बेटर लग्जरीज हैं, सो वो हाईली ट्रेंड होते होकर आते हैं। तो ड्यूरिंग वन ऑफ हर हाइडिंग स्पॉट्स, शी हर्ड कि पीटा उनके साथ हो गया है, और वो लोग इसे ढूंढ रहे हैं, कैटनिस को ढूंढ रहे हैं। और इसी दौरान कैटनिस भागती है, उनमें से कुछ मर जाते हैं कैटनिस की वजह से। और देन कैटनिस को मिलती है रू। रू एक डिस्ट्रिक्ट 6, आई थिंक, एज फार एज आई रिमेम्बर, डिस्ट्रिक्ट 6 से 12 साल की बच्ची है, लिटरली शी इज अ किड, from district 6, which is the agriculture district, as far as I remember. And उसे अपनी बहन दिखती है उसमें, कैटनिस को, प्रिमरोज, कि यार ये मेरी बहन जैसी है। सो शी टुक केयर ऑफ दे बोथ टुक केयर ऑफ ईच अदर। प्रिम बताती है उसे चीज़ों के बारे में, एंड देन कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रिम की डेथ हो जाती है। और उस वक्त कैटनिस अपना फर्स्ट किल, जो इंटेंशनली वो किसी को मारती है, वो होता है कि जब ये प्रेम की बॉडी को लेके बैठी होती है, तो एक बंदा आता है जिसने भाला मारा होता है प्रेम को। तो कैटनिस बस, बोलते हैं ना, इंस्टिंक्ट रिएक्शन, शी जस्ट शॉट हर एरो थ्रू हिज हार्ट, एंड ही डाइड इंस्टेंटली। That's the first kill Katniss did, and on after that she literally cries, and मतलब वो कैटनिस उसकी बॉडी को छोड़ती नहीं है, प्रेम की पास बैठी रहती, रोती रहती है, और फिर उसे अच्छे से फूलों से कवर करती है। And also she give that salute, this salute, this is the salute, like this they give a salute to Prim, and then moves on to further games। बाद में अनाउंस होता है कि पीटा और वो साथ में आ सकते हैं, and all that stuff। So yeah, at the end of the day, they Pita and Katniss, the games के रूल बदल दिए जाते हैं कि अब आप कपल एज अ कपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट का कोई बंदी जिंदा है, तो आप उसके साथ जी सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। सो वो ढूंढती है, पीटा को मिल जाता है, वो लोग सरवाइव करते हैं एंड में। एंड में वो लोग बच जाते हैं। बट जैसे ही वो लोग फाइनल 2 होते हैं, फिर से एक और अनाउंसमेंट होता है कि सिर्फ एक ही बचे, एक ही चाहिए। आप दोनों का अब एक दूसरे, उन्हें लगता है हम जीत गए, बट उन्हें अब एक दूसरे को मारना होगा। तो कैटनिस बोलती नहीं। मतलब पीटा का ये थॉट होता है, पीटा ये एक सीन है जिसमें पीटा बोलता है गेम्स में जाने से पहले कि हम, आई डोंट वांट कैपिटल टू चेंज मी, आई वांट टू डाई, if I am gonna die, I want to be who I am। सो दैट्स व्हाट पीटा वांट्स। एंड ये कैपिटल, ये कैटनिस नोटिस करती है, और उसके पास जहर की बीन्स होती हैं। बोलती है लेट्स ईट इट, हम दोनों मर जाएंगे, कोई नहीं जीतेगा। 3 तक करते हैं, अगर इन्होंने गेम चेंज नहीं किया, and but before they could eat, the announcement is made, and rest of you we know, they जीत जाते हैं। और स्नो लिटरली धमकी देता है, स्नो प्रेसिडेंट स्नो, जो पैनम का प्रेसिडेंट है, जो और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का लीडर है, वो बोलता है कि द गेम्स हैव जस्ट स्टार्टेड। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ। सिमिलरली स्टोरी 2 में ये दिखाया जाता है कि आफ्टर विनिंग द गेम्स, कैटनिस इज टॉर्चर्ड, शी हैज पीटीएसडी, शी इज डिप्रेस्ड। मतलब उसे चीज़ें दिखती हैं, उसे गेम्स की चीज़ें दिखती हैं, एंड शी इज़ रियली रियली टेरिफाइड। तब और उसे एक बड़ा सा घर दिया जाता है शहर से थोड़ा दूर, जहाँ पे वो लग्जूरियस लाइफ जी रही है। दैट्स दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ मैनिपुलेशन, कि जो जीता है उसे ऐसी लग्जरीज दे देते हैं कि वो कट जाता है अपने ही गरीब दोस्तों से, जिनके साथ वो पहले खेलता था या जाता था, जिनके पास। सो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ आइसोलेट करना विनर्स को। सो दैट्स द थिंग, दैट्स हाउ इट हैपेंस। एंड देन थिंग्स हैपन। देयर इज अ टर्म नोन एज क्वार्टर क्वेल, जो हर 25 साल में एक जो गेम होता है, उसे क्वार्टर क्वेल कहा जाता है। हर क्वार्टरली होता है वो गेम। सो दिस ईयर सेवन लास्ट गेम जो था जिसमें कैटने जीती थी, वो 74th था, और ये 75th है। 75th में कैपिटल गेम को चेंज कर देता है, बिकॉज आफ्टर कैटनिस विन, और कैटनिस रिबेलियसली जीती होती है ना, कि मैं जहर खा लूंगी पीटा के साथ। सो आफ्टर दैट रिबेलियन होने लगता है कई डिस्ट्रिक्ट में, लोग चीज़ें तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो उसकी वजह से रेबेलियन को कर्व करने के लिए द न्यू गेम की, बिकॉज पुराने गेम कीपर को स्नो मरवा देता है लिटरली।
मरवा देता है बिकॉज ही फेल्ड। तो वो बोलता है लिटरली उड़ा देना चाहिए था उन लोग को उसी वक्त जब वो लोग जहर खाने जा रहे थे, बट ठीक है। सो न्यू गेम कीपर जिसका नाम प्लूटार्क हेवेंस भी होता है, वो बोलता है कि लेट्स राउंड देम अप इन द न्यू हंगर गेम्स, ओल्ड old winners will be the one, it will be an all star हंगर गेम्स, यानी कि जो पहले जीत चुके हैं, जिन्होंने पहले टॉर्चर्ड लाइफ जी रहे हैं, जो आज भी जिन बच्चों को उनके घर उनके शहरों से सिलेक्ट उनकी डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट किया जाता है, उन्हें मरता हुआ देखते हैं, इस बार वो आएंगे हंगर गेम्स में। and that's how even then also पीटा और जो कैटनिस का कैरेक्टर है जो प्यार की एक्टिंग कर रहे होते हैं काइंड ऑफ, वो लोग उनको अब प्यार की एक्टिंग कंटिन्यू करनी है। उन्हें लिटरली परेड अराउंड किया जाता है इन ट्रेन्स, ईच डिस्ट्रिक्ट में जाके वो लेक्चर्स देते हैं, स्पीचेस देते हैं, कैपिटल कितना महान है, और अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, और फिर कैमरे के आगे प्यार दिखाना है, सब नौटंकियां करनी पड़ती हैं, और उसकी वजह से कैटनिस और मेंटली टॉर्चर्ड हो रही होती है। और देयर इज अ सीन के जब वो लोग प्रेसिडेंट स्नो, एक एक सीन है कि प्रेसिडेंट स्नो कैटनिस से मिलने आते हैं बिफोर उनका जो टूर स्टार्ट होने वाला होता है, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। तो प्रेसिडेंट स्नो डायलॉग बोलता है कि यू वी डोंट हैव टू लाई विद ईच अदर, राइट? सो कैटनिस डर तो रही होती है लेकिन देखती है उसकी तरफ, बोलता है कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग, if you can't convince other district that you are really in love and capital is providing this, then वो एक काइंड ऑफ धमकी देके जाता है कि यूं मार देगा वो सबको लिटरली। एंड दैट्स हाउ does दे हैव टू प्रिटेंड, दे कहीं पे कुछ गलत बोल देते हैं उसकी वजह से वहाँ और इश्यूज हो जाते हैं, बट देन दे चेंज देयर टोन्स, अच्छे से करते हैं। जैसे सीन के कैप प्रेसिडेंट स्नो एक पार्टी देते हैं एंड में टूर के, जिसमें ये लोग जाते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट स्नो कैटनिस की तरफ देखता है और लिटरली ऐसे ऐसे करता है, तो कैटनिस का दिमाग और खराब होने लगता है। तो वहाँ एक सीन है कि डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को खाने के पैसे नहीं, खाने के वांदे लगे हुए हैं, अगला मील मिलेगा नहीं पता। और वहाँ एक सीन है कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं, भर भर के खाना खा रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट पैनम के लोग, जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोग, और फिर उन लोग को एक लिक्विड या फिर एक टैबलेट होती है जो वो लोग खाते हैं, वॉशरूम्स में जाके उल्टी कर देते हैं उस खाने की, और फिर से खाना खाते हैं। तो लिटरली वो कैटनिस को वो देने आते हैं वो टैबलेट, क्योंकि वो लोग इतने ब्रेन वॉश थे, वो काइंड ऑफ इनोसेंट्स हैं, उनके लिए तो ये नॉर्मल है, बोले, अरे यार तुम भी करो ना। एंड कैटनिस वो लेती है और दे बोलती है कि यार हमारे यहाँ खाने के वांदे लगे हुए हैं लोगों के, यहाँ ये ऐसे खाने को वेस्ट किया जा रहा है। सो अबंडेंस बोलते हैं ना। सो दैट्स एंड देन द सिलेक्शन हैपन, पुराने गेम्स के लोग आते हैं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो पहले जीत चुके हैं, उसमें तो कुछ एजेड हो चुके हैं, कुछ के दिमाग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, कुछ यंग हैं अभी भी क्योंकि वो बहुत यंग एज में जीते थे। तो फिनी कोडायर करके कैरेक्टर दिखाया है जो काइंड ऑफ एक अलायंस बनाता है कैटनिस के साथ, बिकॉज हेमिच कैटनिस, हेमिच का नाम आता है और कैटनिस का नाम निकलता है, क्योंकि कैटनिस तो सिंगल वो लड़की होती है तो उसका तो नाम आना ही था। जब हेमिच का नाम आता है तो पीटा अपने आप को वॉलंटियर कर देता है वहां पे कि मैं जाऊंगा। ऑब्वियसली हेमिच इज नॉट राइट इन हिज हेड, सो हेमिच एक अलायंस क्रिएट करता है कि कैसे तुम लोग कैपिटल को हरा सकते हो, बट इस अलायंस का और डीपर मीनिंग है जब आगे जाके आपको पता चलेगा, बिकॉज देर इज अ रंबलिंग हैपनिंग इन डिस्ट्रिक्ट्स, कैटनिस हैज बिकम मोर देन व्हाट शी इज। सो ड्यूरिंग द गेम्स, एज वी नो, द अरीना नई तरह की अरीना होती, लास्ट अरीना में जंगल की सेटिंग थी, इसमें भी जंगल है, लेकिन पूरी अरीना एक क्लॉक्स में डिवाइडेड है, मल्टीपल जैसे 12 वो होते हैं उसमें डिवाइडेड है, और वो अरीना में हर घंटे या हर कुछ देर में एक साइड में कुछ ना कुछ इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल इनके साइड में बंदर बबून्स रिलीज किए जाते हैं जो काइंड ऑफ मार देंगे आपको, ये लोग ऑलमोस्ट इंचों से बचते हैं उससे। और फिर एक जगह पे पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती है, एक जगह पे खून की सुनामी आ जाती है, अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो कुछ जो अच्छी जो हेमिश ने टीम काइंड ऑफ कुछ लोगों को वो किया होता है, वो साथ में आ जाते हैं कैटनिस के, और उसमें जोआना करके होती है एक बंदी, और तो ये लोग मिलके एक प्लान करते हैं कि जो एक पेड़ होता है जिसपे बिजली जब गिरती है तब होती है चीजें, बोला कि उस पेड़ में जब बिजली गिरेगी
तब हम लोग उस पेड़ को तार लगा के शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पूरा अरीना का वो फ्यूज उड़ जाएगा काइंड ऑफ, एंड देन वी कैन स्केप, और काइंड ऑफ हमारा मैसेज रहेगा कि देखो हमने कैपिटल को वो हरा दिया। सो ऐसा प्लान होता है, बट ड्यूरिंग द प्लान थिंग्स हैपन व्हिच कैटनिस डिडंट नो अबाउट, एंड देन शी डिड शूट दैट एरो, एंड बिजली गिरती है, शॉर्ट सर्किट होता है अरीना में, और शी गॉट टोड अवे इन अ जेट, एंड देन शी वोक अप। जहाँ वहाँ गेल होता है जो उसका दोस्त है, वहाँ हेमिच होता है, बट पीटा को वो बचा नहीं पा रहे होते। पीटा अभी भी अरीना में होता है, जिसे कैप्टन ने कैप्चर कर लिया होता है, और ये पूरा प्लान होता है कैटनिस एवर्डीन को निकालने का हंगर गेम से। और ये लोग डिस्ट्रिक्ट 13 लेके जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट 13 का बोला गया था लेवल हो गया, एक्चुअली नहीं। डिस्ट्रिक्ट 13 वाज द न्यूक्लियर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ न्यूक्लियर आर्सेनल थी कैपिटल की एक ज़माने में। तो उसी का डर की वजह से डिस्ट्रिक्ट 13 और कैपिटल के बीच में एक काइंड ऑफ पीस ट्रीटी साइन होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 13 दब जाएगा, ज़मीन के नीचे चला जाएगा, लेकिन कैपिटल उसे टच नहीं करेगा, बिकॉज कैपिटल को भी डर है उनके न्यूक्लियर अर्सनाल से। तो काइंड ऑफ एक दिखाया है। तो ये लोग और ये लोग ही रिबेलियन को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, और कैटनिस हैज बिकम a symbol of rebellion. She is the mockingjay. Mockingjay is a kind of a bird जो मॉकिंग एक बर्ड दिखाई है जो सरवाइव कर गई होती है ओवर द वॉर, बिकॉज कैपिटल ने एक जैबर जेस नाम की बर्ड्स को बनाया होता है, जो लोगों की जो रिबेलियंस की बातें सुन के उनको बताएंगी। लेकिन रिबेलियन वाले समझ जाते हैं कि ये कैपिटल ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड बर्ड्स हैं, तो लोग गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आफ्टर द वॉर दे किल और द जैबरजेस, लेकिन कुछ बच जाती हैं जो मेट करती हैं लोकल लोकल बर्ड से, और उनसे नई बर्ड्स बनती मॉकिंग जे। मॉकिंग जे इज अ सिंबल ऑफ सर्वाइविंग, कि कैपिटल ट्राई टू किल देम, कि ये फेल एक्सपेरिमेंट था हमारा, बट these birds survive somehow. So she became Katniss Everdeen became the Mockingjay. Mockingjay. And the last book and last movies the Mockingjay is divided. The last book is divided into two parts by movies, Mockingjay part 1 and part 2. It was not a necessary thing. They could have made a one movie which would have been much better, because that book is dark. मतलब थ्रू आउट अगर आप मूवीज में तो आपको इतनी चीजें नहीं दिखाई दिखाई जा सकती हैं, ऑब्वियसली मैंने बुक्स पढ़ी हैं, और उसमें जो कैटनिस मेंटली टॉर्चर्ड और हैरास्ड हुई है, कॉन्स्टेंटली उसे पैनिक अटैक्स आते हैं, कॉन्स्टेंटली वो चीजें इमेजिन करती है, कॉन्स्टेंटली वो इधर उधर छुपी हुई मिलती है। इट्स रियली हॉरिफिक टू सी दैट, बिकॉज उसे नहीं हीरो बनना है। शी डजंट नेवर वांटेड टू बी अ हीरो, never wanted to rebel. She just want to live with her little sister and her mother, that's it. But now she's been forced to become what she doesn't want to, but she doesn't have an option, otherwise डिस्ट्रिक्ट 13 वाले फेंक देंगे। ऑल्सो आफ्टर हंगर गेम 75 जब कैटनिस को उठा के ले जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट 12 के बमों से जेनोसाइड कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट 12 का पूरी तरीके से। सो जो लोग बचते हैं, जिन्हें बचा लेती हैं डिस्ट्रिक्ट 13 वाले, अपने पास ले आते हैं, उसमें तो कैटनिस की मॉम भी होती है। सो या, so they try to convert Katniss into a symbol of rebellion। और उधर कैपिटल में भी स्नो स्नो जो है, प्रेसिडेंट स्नो जो कैपिटल का स्नो है, पैनम पैनम का प्रेसिडेंट है, वो पीटा और जो कैप्चर्ड हंगर गेम्स पुराने हंगर गेम्स के लोग थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उनके थ्रू गलत गलत इन्फॉर्मेशन भिजवा रहा है, मतलब प्रोपागेंडा वीडियोस के थ्रू। सेम वे ये लोग इधर इसका यूज करते हैं, कैटनिस एवर्डीन का, अपने प्रोपागेंडा वीडियोस बनाने के लिए। सो एक मिशन पे ये लोग जाते हैं, जहाँ पे इन्हें एक रिबेलियन हॉस्पिटल में जाके कैटनिस को स्पीच काइंड ऑफ बोलते हैं देनी चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा लोग, और वहाँ कैपिटल के प्लेन्स आ जाते हैं, बट कैटनिस और गेल मिलके उन प्लेन्स को गिरा देते हैं, एंड देन शी से इफ विल बर्न यू विल बर्न विद अस, एंड देन मतलब एट दैट टाइम द एंगर जो निकल के आता है उसका एक वीडियो बना के डाला जाता है, उसकी वजह से और रिबेलियन स्ट्रांग होता है। और फिर हैंगिंग ट्री का सॉन्ग तो बहुत ही फेमस है, आर यू कमिंग टू द ट्री। सो दैट ऑल थिंग हैपन इन द एंड, द कैपिटल की फोर्सेस को पीछे हटना पड़ने में मजबूर होना ही पड़ता है, बिकॉज सब तरफ से रिबेलियन होने लगती है, कई डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे करके कैप्चर कर ली जाती हैं बाय रिबेलियंस रेबल्स। एंड देन कैपिटल के अंदर घुसने के लिए जो आसपास का एरिया वो बहुत बुरी तरीके से रिक किया होता है कैपिटल ने,
सो देयर इज अ सीन के वो लोग जाते हैं और कहीं पैर पड़ता है और जमीन से कुछ निकलता है, और लिटरली इट पीपल डाई हॉरिफिक डेथ्स। सो फिनिक ओडेर जो साथ में जाता है कैटनिस, बिकॉज कैटनिस प्लान रहती है कि मैं जाऊंगी मारूंगी स्नो को, मैं मारूंगी स्नो को, इस वॉर को जल्दी खत्म कर देंगे वरना हमें फैमिलीज पे आ सकती हैं चीजें। सो उसमें वो बोलता है वेलकम टू द 76 हंगर गेम्स, जब वो देखता है ट्रैप्स, लिटरली ऐसे ट्रैप्स हंगर गेम्स में होते थे। So that's how story events progress. They they battle really horrific things. Finnick dies while saving others, and at the end of the day, Gale, पीटा पीटा जो मेंटली लिटरली डिस्ट्रॉयड हो चुका है, उसे डिस्ट्रिक्ट 13 वाले जबरदस्ती साथ में भेजते हैं इसके कैटनिस की टीम के साथ। एंड ऑल्सो ही इज अनस्टेबल, सो उसकी वजह से भी वो मेंटली टॉर्चर्ड है, क्योंकि कैपिटल ने उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो ये गेल और पीटा बचते हैं एंड में, जहाँ पीटा को ये लोग एक रेबल रेबल एक रेबल होती है जो कैपिटल में रह रही होती है, उसके घर पे छोड़ के गेल और ये बोलते हैं हम जाके प्रेसिडेंट स्नो को एंड कर देंगे, मार देंगे। एंड देन दे वेंट, बट वो कोई फायदा नहीं होता, ऑलरेडी रेबल्स इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं सिटी को, पैनम को, और दे अटैक द अटैक होल ऑफ क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के आसपास का एरिया, प्रेसिडेंट स्नो के जो मैंशन होता है उसके आसपास का एरिया। एंड देन रेबल सेंड्स रेबल सेंड एड, यानी कि नर्सेज और डॉक्टर्स की एक फौज आती है, जिसमें सामने कैटनिस देखती है कि उसकी बहन भी आई है, उसी उसी में लोगों की हेल्प करिए, तो देखती है उसकी तरफ दौड़ती है, सडनली कैपिटल का कैपिटल की फोर्सेस का प्लेन आता है, कैपिटल की फोर्सेस का प्लेन आता है और वो बम गिराता है, और लिटरली जिसके लिए कैटनिस ने अपने जिंदगी खराब कर ली, जिसके लिए उसने वॉलंटियर किया, एट द एंड ऑफ द डे प्रिम डाइस। दैट्स हाउ काइंड ऑफ हंगर गेम्स kind of ended, because after that she came to know कि that plane was planned, मतलब कैपिटल को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए रेबल्स की जो रेबल्स की जो रेबल्स की जो प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट 13 की जो प्रेसिडेंट दिखाई, कॉइन करके नाम होता है उनका, वो भी काइंड ऑफ वही माइंडसेट की होती है स्नो की, बस ये है कि ये पावर में नहीं है, ये अपोजिशन में है, लेकिन है हरामी ये भी उतनी ही। तो वो कहती है कि इन बच्चों काइंड ऑफ ये प्लान होता है कि इन्हें इनके अगर हम अपने लोगों पर ही बम गिराएंगे, और उसमें कैपिटल के लोग भी होंगे जिनकी वो ख्याल करने के लिए हमारे डॉक्टर्स गए हुए हैं, तो कैपिटल वाले भी रिवॉल्ट कर देंगे, पूरी तरीके से टूट जाएगा स्नो की जो स्नो का होल्ड है कैपिटल पे। सो बाद में पता चलता है, एंड इन द एंड कैटनिस किल्स कॉइन एंड द हंगर गेम्स एंडेड, and that's how the story of Hunger Games is. It's a horrific tale of what propaganda can do, what dictatorship can do, how far people will go to justify genocide, to justify bad um, killing innocents, and people will celebrate, some people will literally celebrate। आज ही के दिन आप ट्विटर पे चले जाए, ट्विटर इज अ हेल होल, मत जाइए मैं तो बोलूंगा, बट ट्विटर पे आप चले जाए, पीपल आर लिटरली सेलिब्रेटिंग किड्स डेथ देयर। It's horrific to see what's happening in the world, and we are really close to something like Hunger Games. So and also surveillance is a huge point of Hunger Games as well, कि आपकी हर चीज उनकी नजर में है, आप भाग नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। So सुजैन कॉलिंस ने बहुत ही शानदार बुक्स लिखी हैं, और आई वुड से प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग, जेनिफर लॉरेंस एज कैटनिस एवर्डीन, बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग है, ऑलमोस्ट हर का एक्टर का बेहतरीन कास्टिंग है, और आफ्टर हैरी पॉटर मेरे हिसाब से ये बेस्ट अडेप्टेशन है ऑफ एनी बुक सीरीज जो मैंने देखी और पढ़ी है, आई थिंक। एंड एवरीवन डिड अ फिनोमिनल जॉब। इट्स द बुक्स आर अ मस्ट रीड। लोग कहते हैं कि बुक 3 अच्छी नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि हंगर गेम्स वाला एंटरटेनमेंट नहीं, उसमें टॉर्चर्ड सोल की स्टोरी है। You get to know what Katniss is thinking, you get angry with Katniss, but at the end of the day you understand वो, बट वो हंगर गेम्स का फैंसीनेस नहीं है जो फर्स्ट टू बुक्स में है, बट बुक 3 इज इक्वली गुड फॉर मी, आई थिंक। आई कांट ऑब्वियसली, कैचिंग फायर सब बोलते हैं सबसे अच्छी बुक है, और इट्स अ रियली गुड बुक, इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग वन आई वुड से, बट all 3 books are equally good for me, and the books movies as well are really well done। पार्ट वन पार्ट टू का इशू है थोड़ा, बट अगर आप साथ में देखेंगे दोनों पार्ट्स को तो यू वोंट फील दैट, यू विल लव दोज मूवीज, यू इट्स अ मस्ट वॉच।
for everyone, especially in today's climate, to open your minds to what's happening all around us. So let's uh, let's end this video here. It was always wanted to talk about Hunger Games, and I'm a huge fan of Hunger Games. मैंने जब मैं 20 साल का था तब मैंने पढ़ी थी ये बुक्स, और तब मुझे इतना हिट नहीं करी थी, बट इन 2020 ड्यूरिंग लॉकडाउन आई रीविजिटेड दोज बुक्स, and then I got to know, I understood what actually these books are saying. It's not just a fun dystopian book game chal raha hai mast. It's more than that. And it's beautifully written also. उसके बाद कुछ दो prequels आए हैं और दोनों ही बेहतरीन हैं. I would recommend those two, but at least read the original three books and watch the original four movies. So um, until then, next time, happy Hunger Games, and may odds be ever in your favor. Hasta la vista. Goodbye.